Hello, my dear students. How are you? I am sure you must be in very high spirits. तो आओ शुरू करते हैं आज का हाई yield पॉइंट सीरीज सीरियल नंबर 8 एंड द टॉपिक टुडे इज प्रोजेक्टाइल मोशन. So first of all, what is a projectile? Any body which is given some initial velocity and is then allowed to move under the action of gravity alone, that is without being propelled by any external agency, is known as a projectile. And the path followed by a projectile is known as its trajectory. Then remember, projectile motion is two-dimensional motion. Number one, uniform horizontal motion, and number two, uniformly accelerated vertical motion. In projectile motion, g, that is acceleration due to gravity, is taken as constant both in magnitude as well as direction. That is, it is assumed to act in the vertically downward direction. And number two, the air resistance is neglected. So these are the two assumptions that we take in projectile motion. अब दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है. एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स व्हेन द गिवन बॉडी is projected in the horizontal direction. So suppose a body is projected from the top of a tower of height h in the horizontal direction with velocity small u. Now you know that gravity acts in the vertically downward direction. और आपको पता है कि कोई भी वेक्टर जो है इट हैज़ नो कंपोनेंट, दैट इज़ नो इफेक्ट इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू इट. तो अगर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट या इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. यानी कि ग्रेविटी के कारण जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी प्रोजेक्टाइल को u, वो ना कम होनी है ना ज़्यादा. उसको कम करने वाली एक ही चीज़ है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, और उसको हमने कर दिया निगलेक्ट. तो इसका मतलब द बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. और बॉडी की ओ पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है ज़ीरो. एंड बिकॉज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. Now let us suppose at any time the projectile is at the point P, so that it travels a distance x in the horizontal direction and a distance y in the vertically downward direction. Then x equal to uniform horizontal velocity in the horizontal direction, that is ux into time, that is u into t. Let us call this as equation number 1. And to find y, we use the formula s equal to ut plus half at square. So y equal to uy into t plus half a by into t square. Now uy means initial velocity in the vertically downward direction, that is 0 into t plus half ay is g, half gt square, or y equal to half gt square. Now from these two equations 1 and 2 we eliminate t. From 1 t will be x by u, and put that value in equation 2, we get y equal to g by 2 u square into x square. Now g by 2 u square is constant, I can write it as k. So that means y equal to kx square. So this equation is called equation of motion of the projectile. And because this is the equation of a parabola, therefore the path followed by the projectile is a parabola. The time of flight, remember this formula, time of flight of the projectile in this case is given by capital T equal to 2h by g under root, where h is the height of the tower and g is the acceleration due to gravity. Or time of flight means time taken by the projectile from the moment it was projected to the point where it hits the ground. Then horizontal range, that means R equal to AB. AB is the foot of the tower and B is the point where it hits, the projectile hits the ground. That is equal to uniform horizontal velocity into time, that is ux into t equal to u into under root of 2h by g, because capital T, the time of flight is 2h by g under root. So that is the horizontal range. Then velocity with which the projectile hits the ground, that is given by v equal to vx square plus vy square. Vx means velocity in the horizontal direction and that is equal to u, and velocity in the vertically downward direction is
जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी इज गिवन बाय वी इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर अंडर रूट, एंड इफ दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर देन टेंजेंट बीटा इक्वल टू जी टी बाई यू। तो यहाँ पे जब हम वो पॉइंट लेते हैं जब बॉडी हिट करती है तो स्मॉल टी की जगह आ जाएगा कैपिटल टी। सो यहाँ पे मैंने कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी एट एनी टाइम इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट ऑफ दैट। देन इफ बीटा इज द एंगल विच द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल at the point where it hits the ground makes with the horizontal, then tangent beta will be equal to Vy over Vx. Now Vx is u because it remains constant and Vy is g into t. So t की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा g by u पहले आ गया और t means time of flight, वो आ गया 2h by g. So under root of that. So remember this formula also. अब हम आते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन होता है जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं making some angle with the horizontal. That angle can be taken either with the horizontal or with the vertical. So let us suppose we project a projectile with velocity u making an angle theta with the horizontal. अब ये जो velocity u है it can be resolved into two rectangular components along x-axis, that is in the horizontal direction. The component is ux equal to u cos theta, and because gravity acts in the vertically downward direction, therefore this component will remain constant, and the velocity in the vertically upward direction uy is u sin theta. So the path followed by the projectile is OAB, और हम प्रूव कर सकते हैं कि this is a parabola by deriving the equation of motion of the projectile. अब ये जो horizontal velocity है it remains constant, इसका मतलब जिस मर्जी पॉइंट पे ले लो हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है दैट गोज ऑन चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली। जब ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी फ्रॉम ओ टू ए तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और पॉइंट ए जो कि हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच के सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी रह जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। और जब ए से नीचे की तरफ आती है तो हॉरिजेंटल तो सेम रहती है यू कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकल जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जब यहाँ पे आके बी पॉइंट पे हिट करती है तो हॉरिजॉन्टल तो यू कॉस थीटा ही होगी और वर्टिकल हो जाएगी जितनी ऊपर की तरफ थी एट द पॉइंट ओ दैट इज यू साइन थीटा। उतनी ही वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को जितनी वेलोसिटी से उसको फेंका था। देन ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, आपने फार्मूला याद कर लेना कि वाई इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी ओवर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, of course into x square. Now this is the equation of a parabola, therefore the path followed by the projectile or the trajectory of the projectile is a parabola. Then time of flight is given by capital T equal to 2u sin theta by g. Maximum height reached by the projectile is given by capital H equal to u square sin square theta by 2g. Now for h to be maximum, theta should be 90 degree because h will be maximum when sin theta is maximum, and sin theta will be maximum when theta is 90 degree. That is when the body is projected in the vertically upward direction, but in that case it will not be called a projectile क्योंकि फिर उसका मोशन लीनियर मोशन हो जाएगा, वो सीधी बॉडी ऊपर जाएगी along a straight line और सीधी फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि when it will be maximum तो आपने कहना when theta equal to 90 degree और maximum height उस केस में आएगी u square by 2g. The horizontal range, horizontal range होता है the time for which the projectile remains in air, that is called time of flight, and the horizontal range is the distance from the point of projection to the point where it hits the ground in the horizontal direction. So that is r, denoted by r equal to u square sin 2 theta by g. So therefore remember horizontal range is u square sin 2 theta by g. Now when it will be maximum, when sin 2 theta is 1, that is 2 theta is 90 degree, that is theta equal to 45 degree. So remember the horizontal range of a projectile is maximum when the angle of projection is 45 degree, and the maximum horizontal range is u square by g. Now if capital H is the vertical range when r is maximum, और r कब maximum होगा when theta equal to 45 डिग्री, तो आपने क्या करना है जो वर्टिकल रेंज यानी कि मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला निकाला है इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसमें आप पुट कर दो 45 डिग्री, तो आप देखेंगे कि उस केस में जो h है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ दी
मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एच इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल 90, और उस केस में अगर मैं हॉरिजेंटल रेंज वाले फार्मूले में थीटा 90 पुट करूं तो आर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 बाई जी, एंड साइन 180 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। क्यों ज़ीरो आएगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो बॉडी या प्रोजेक्टाइल सीधा ऊपर जाएगा और सीधा ही नीचे आएगा, यानी कि जिस पॉइंट से फेंका था उसी पॉइंट पे आगे हिट करेगा। दैट मीन्स the point of projection and the point at which it hits the ground are at the same position, and therefore the horizontal range will be 0. Now, as I told you, H maximum is u square by 2g when theta equal to 90 degree, and R maximum is u square by g when theta equal to 45 degree. Therefore, H maximum equal to R maximum divided by 2. So remember this formula also. अगर आप ये फार्मूला याद करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन दिस केस इज वाई, ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन एक और तरीके से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2 यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। यहाँ से मैंने एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस जी एक्स ओवर 2 यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। फिर मैंने टेंजेंट थीटा को लिख दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 2 यू स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और ये बन गया नेक्स्ट स्टेप में यू स्क्र इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो बन गया यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आ गया एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन इंटू 1 माइनस एक्स ओवर यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी, and u square sine 2 theta by g is capital R, and therefore y equal to x tangent theta into 1 minus x by R. So this is another formula for the trajectory of the projectile which is thrown in a direction making an angle theta with the horizontal. Then velocity of the projectile at any time is given by v equal to u square plus g square t square minus 2 u g t sine theta under root of this. And if it makes an angle beta with the horizontal, then tangent beta is given by tangent beta equal to tangent theta minus gt by u cos theta. So remember this formula for the velocity of the projectile at any time t. Now at the highest point, जब highest point पे पहुंच गए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि during projectile motion जो horizontal velocity है that remains the same, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो यूज कॉस थीटा ही रहेगी। इनफैक्ट आपको याद कर लेना चाहिए कि एट द हाईएस्ट पॉइंट या किसी और पॉइंट पे भी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि अगर थीटा एंगल हॉरिजेंटल से है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो गया, वर्टिकल यू साइन थीटा हो गया। लेकिन अगर एंगल थीटा वर्टिकल से है तो हॉरिजेंटल से बन गया 90 माइनस थीटा। तो जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए ये बताया जब थीटा हॉरिजेंटल से है, अगर थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा हॉरिजेंटल से हो और वर्टिकल से थीटा हो तो फिर हमने जितने फार्मूले किए हैं उनमें थीटा की जगह क्या लिख देना है 90 माइनस थीटा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जाके जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट बिकम्स इक्वल टू 0। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि उसको यूज वेलोसिटी से हमने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, और क्योंकि उस पॉइंट पे हाइट 0 है प्रोजेक्टाइल की तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो दोनों का सम अगर हम ले लें तो वो आ गया हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। अब चलो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगी हाफ एम, और वेलोसिटी कौन सी रहेगी सिर्फ वहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और वो कितना है यू कॉस थीटा, तो हाफ एम यू कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये बन गया हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी बन गई एम जी इंटू कैपिटल एच, वेयर एच इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और एच की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर टोटल निकाल लें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऐड करो तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया 1/2 एम यू स्क्वायर। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, प्लीज नोट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इन फैक्ट दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, and that is a universal law and it is never violated. So total energy हर जगह सेम रहती है, not only at the point of projection or at the highest point.
At any other point also, if we take the sum of the kinetic and the potential energies, that will remain equal to half mu square. Now if theta equal to 45 degree, that means if the projectile is projected in such a way that its horizontal range is maximum, then kinetic energy at the point of projection वो तो हाफ एम यू स्क्वायर ही आनी है, और एट दी हाईएस्ट पॉइंट वो बन जाएगी हाफ एम इंटू यू कॉस थीटा स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया. लेकिन यहाँ थीटा कितना है 45, तो आ जाएगा यू कॉस 45 स्क्वायर आ जाएगा. तो ये बन गया हाफ एम यू स्क्वायर, कॉस 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, एंड हाफ एम यू स्क्वायर इज के, दैट मीन्स इट इज k/2. सो रिमेंबर द if k is the kinetic energy at the point of projection and the angle of projection is 45 degree, then kinetic energy at the highest point is k/2. In fact, kinetic energy at the highest point is given by k dash equal to k into cos square theta, cos square theta. तो वो पुट करोगे तो आपका उतना ही आ जाएगा. Now इफ़ द हॉरिजेंटल रेंज इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट रीच, कई बार ये दे देते हैं कि हॉरिजेंटल रेंज 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है, तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना. तो ठीक है, इन जनरल मैं लेता हूँ r इक्वल टू n इंटू एच. अब मैं r की और h की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा r हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, n इंटू एच आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. अब इस साइन 2 थीटा को मैंने लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस तरफ वही चीज़ आ गई. अब इसको काटा मैंने क्योंकि g से g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट थीटा आ गया 4/n, एंड देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/n. अब मान लो वो कहता है 2 गुना, तो n2 आ गया. तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो एक सेकंड में आप थीटा का आंसर निकाल सकते हैं. टेंजेंट इनवर्स 4/2, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 2. अगर वो कहता है बराबर है तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, ये n1 कितना आ गया, दोनों बराबर अगर हों, r इक्वल टू h हो तो 1 आ गया, तो टेंजेंट इनवर्स 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन. देन प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग ट्रॉली. अगर हम ये बातें ध्यान से सुनना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मे बी न्यू पॉइंट्स फॉर यू, कि अगर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल विद वेलोसिटी यू से, बट नॉट while we are at rest on the ground, we are in a trolley which may be moving towards right or towards left or in the vertically upward direction or in the vertically downward direction. So suppose a body is projected with velocity u making an angle theta with the horizontal from a trolley moving with velocity v in the horizontal direction. Then let us take the following cases. Number 1, if the body is projected in the direction of motion of the trolley. मान लो ट्रॉली, देखो ट्रॉली किस तरफ जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, v से. तो मान लो उसी तरफ ऐसे फेंकते हैं मेकिंग एन एंगल थीटा. अब उसका हॉरिजॉन्टल, अगर तो ट्रॉली नहीं होती, रेस्ट से होते, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आना था u cos थीटा. लेकिन क्योंकि हम उस ट्रॉली में बैठे हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो इफेक्टिव वेलोसिटी बन गई प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा प्लस v. लेकिन क्योंकि किसी वेक्टर का अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ट्रॉली की जो वेलोसिटी है दैट विल हैव नो इफेक्ट और नो कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विल बी u sin थीटा. Now the second case is if the body is projected in a direction opposite to that of the trolley. इसका मतलब ट्रॉली मान लो राइट की तरफ जा रही है और हम ऐसे फेंकते हैं लेफ्ट की तरफ मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो इस केस में क्या होगा, अगर रेस्ट पे होता तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी थी u cos थीटा, लेकिन अब क्योंकि ट्रॉली की वेलोसिटी उसके उल्टा u cos थीटा के, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी u cos थीटा माइनस v. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी u sin थीटा. अब नेक्स्ट है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं जो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फिर हम फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो मूविंग, मान लो जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इस केस में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी किस तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड, दैट विल हैव नो कंपोनेंट और नो इफेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो
अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो u साइन थीटा कंपोनेंट आ गया, उसका जो हमने जिस वेलोसिटी से फेंका u से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। दूसरे प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी उसमें ऐड हो गई, तो हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा होगी, लेकिन वर्टिकल u साइन थीटा प्लस v होगी। अब अगर मान लो वो प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जा रहा है, तब वर्टिकल कंपोनेंट जो इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा u साइन थीटा माइनस वी। ये नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि अब प्लेटफॉर्म जो है it is moving in a direction opposite to that of the vertical component of velocity of the projectile, that is u sin theta and v are in the opposite directions। तो इफेक्टिव आ गया u sin theta minus v। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मान लो आपके पास ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अल्फा। तो हम क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं विद वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ एंड इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन एट द पॉइंट ए। तो ओ से लेके ए तक जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको मैंने आर से डिनोट किया, और इसको मैं कह सकता हूँ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। सो इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे, वो इसका मतलब ओ ए कितना हो गया, इक्वल टू आर। लेकिन अगर वो पूछता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसका मतलब जब गिरा जाके ऊपर तो उस वक्त हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस था, तो एज इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर वो डिस्टेंस हो गया ओ बी, और वर्टिकल हाइट होगी उस पॉइंट की ए बी या बी ए। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ये एंगल अल्फा है, ओ बी हो गया आर कॉस अल्फा, और बी ए या ए बी हो गया आर साइन अल्फा। तो अगर हमें अल्फ़ा पता हो, आर हम निकाल लें विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, तो फिर हम ओ बी भी निकाल सकते हैं और ए बी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ओ ए इक्वल टू आर, ओ बी इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा एंड ए बी इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा। तो पहले है फार्मूला फॉर द टाइम ऑफ लाइट, ये है टी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर जी कॉस अल्फ़ा। और देखो अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन की बजाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता, तो इसका मतलब अल्फ़ा कितना होता, 0 डिग्री। तो यहाँ पुट करो अल्फ़ा 0, तो अल्फ़ा 0 पुट किया तो ऊपर क्या आ गया 2 साइन थीटा, और नीचे अल्फ़ा 0 पुट किया तो आ गया कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये बन गया 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये वही फार्मूला आ गया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। देन आर की जो वैल्यू है, रेंज ऑफ दी projectile along the inclined plane, that is given by r equal to OA equal to 2u square sin theta minus alpha into cos theta over g cos square alpha। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं by taking alpha equal to 0 degree। You will see that it will come out to be equal to u square sin 2 theta by g। Now for r to be maximum, theta should be equal to pi by 4 plus alpha by 2। this should be the value of theta for the range to be maximum, and r maximum is, अगर मैं थीटा की वैल्यू इतनी पुट कर दूं ये जो r वाली इक्वेशन है उसमें, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। याद कर लो अच्छी तरह ये फार्मूले। देन इन एंगुलर प्रोजेक्शन, जो मैंने पहले फिगर बनाई है जिसमें मैंने बताया कि हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो उसमें इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, लेट अस सी कि क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, कैसे कैसे बदलती हैं। ओ टू ए का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू यू साइन थीटा। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे भी u cos थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी u cos थीटा, किसी और पॉइंट पे भी u, वो तो बदलती नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है u sin थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो गई 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी चेंज आई फिर u sin थीटा माइनस 0 इक्वल टू u sin थीटा। लेकिन अगर वो कहे कि चेंज इन स्पीड क्या है, नोट दिस स्टेप, चेंज इन वेलोसिटी और उसके साथ ही मैंने लिखा चेंज इन स्पीड। फ़र्क क्या है कि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर एंड स्पीड इज़ ए स्केलर। तो इसमें क्या है, कितनी रह गई स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे जाके u cos थीटा, कितनी स्पीड जब फेंका था u। लेट अस नॉट टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शन, तो चेंज इन स्पीड आ गया u माइनस यू cos थीटा, u कॉमन ले लिया इंटू 1 माइनस cos थीटा। देन चेंज इन मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है m इंटू यू cos थीटा और वर्टिकल में है m इंटू यू साइन थीटा।
हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो सेम रहता मोमेंटम, वर्टिकल में चेंज करके ज़ीरो रह गया तो चेंज आ गई एम यू साइन थीटा, दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम. नो वी कम टू चेंज, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. और जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज करी उसने उतनी पोटेंशियल गेन करेगा. ये भी वही चीज़ आ गई, इट इज़ लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज हाफ एम इंटू यू साइन थीटा का स्क्वेयर, एंड दैट इज़ हाफ एम यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. और अगर मैं हाफ एम यू स्क्वेयर को के लिख दूँ तो आ जाएगा के साइन स्क्वेयर थीटा. देन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल. देखो जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आए तो वो जा रहा है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हॉरिजेंटल में. तो कितने एंगल से बदल गई डायरेक्शन, थीटा एंगल से. तो चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू एंगल थीटा. अगर आपको दे रखा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री तो चेंज, वो पूछता कि बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी डायरेक्शन में कितनी चेंज आई, तो आप लिखेंगे 30 डिग्री एंड सो ऑन. देन in going from O to B, O means point from where it was projected and B means where it hits the ground. नंबर 1 चेंज इन स्पीड इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि स्पीड जितनी स्पीड वेलोसिटी से एक्चुअली जाके वो हम फेंकते हैं उतनी ही वेलोसिटी से हिट करता है. तो स्पीड की जहाँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहती है तो चेंज इन स्पीड इक्वल टू ज़ीरो. बट चेंज इन वेलोसिटी हॉरिजेंटल तो वही रहनी है, वर्टिकल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यू साइन थीटा, बट इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. और जब ग्राउंड पे आगे हिट करता है तो भी होती है यू साइन थीटा, बट इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो चेंज आ जाएगी एम यू साइन थीटा माइनस माइनस एम यू साइन थीटा, दैट यू साइन थीटा, not mu sin theta, that is the change in momentum. Change in velocity is u sin theta minus u sin theta, that is 2u sin theta. So that is the change in velocity. Then change in momentum, this is 2mu sin theta जो मैंने अभी बताया आपको. Then change in kinetic energy equal to 0, क्योंकि u स्पीड से हमने फेंका था, u स्पीड से आगे हिट किया तो kinetic energy हाफ एम यू स्क्वायर पॉइंट ओ पे थी और पॉइंट बी पे भी हाफ एम यू स्क्वेयर. सो देर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देर इज़ नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो, क्योंकि ओ पे भी हाइट ज़ीरो, बी पे भी हाइट ज़ीरो, तो दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ही है. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ट्वाइस द एंगल थीटा, क्योंकि पहले थीटा हॉरिजेंटल से था ऊपर की तरफ, जब हिट किया एंगल थीटा हॉरिजेंटल से बना लेकर नीचे की तरफ, तो टोटल जो एंगल आया चेंज इन डायरेक्शन वो ट्वाइस द एंगल थीटा आ गया. देन रिमेंबर, for a given velocity of projection, there are two angles of projection for which the horizontal range is the same, and these angles are theta and 90 degree minus theta. तो अगर इनका सम लें आप तो एक हो गया थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ऐड किया तो 90 डिग्री आ गया. और जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसका मतलब for a given velocity of projection, the horizontal range for two complementary angles is the same. अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका विद वेलोसिटी u और एनी वैल्यू मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल, तो बताओ किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए उसका हॉरिजेंटल रेंज सेम होगा. तो एक तो 30 डिग्री हो गया, दूसरा वो एंगल होना चाहिए जिसको 30 में ऐड करने से सम कितना आ जाए 90, तो वो 60 डिग्री होगा. तो जो चार ऑप्शन होंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा 60 डिग्री. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.